Hi, good morning guys, and you are most welcome to this video. And today just we are going to read the Odysseus English. Odysseus English means that I would like to tell you that is called your Dheet Angrezi. It means that is your Thethar Angrezi. It means that you are sitting in the radio's house and you can learn. It means that from there that you are illiterate. It means that you don't know the ABCD, but then also that you can learn that English sitting at home. That if whatever you are doing, that you keep doing that and you try to know that English that which I am going to teach you, by which that you can learn the English very well, but that will not be the completely the correct. Sometimes we think that grammar is not important. Without grammar that we can speak English. Yeah, there is also that such a way by which that you can learn that such English. And just I am going to teach you that if you have that only good command that in the verb forms that you can learn English that very easily. That's why I am going to tell you, I am going to teach you that verb forms where I will describe them one by one, these all these things, but that will not be the completely grammatical. That will be also Odysseus English. It means that ढीठ अंग्रेजी. इसका तात्पर्य यह है मेरे दोस्तों कि आप नहीं भी जानते हैं फिर भी जानते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं लेकिन ग्रामर जो है आपके बीच आता है और ये ग्रामर जो है आपको कहीं कहीं डिस्टर्ब करता है. तो उसके लिए भी हम लोग कहीं कहीं इस तरह का जो है हम लोग को विवेचना मिलता है कि हम बिना ग्रामर का भी जो अंग्रेजी बोल सकते हैं. तो वैसा है, वैसा उपलब्ध है, लेकिन हमें यहाँ जानना है. लेकिन वो बिल्कुल जो है सही नहीं है, वो ग्रामेटिकल नहीं होगा. आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी किसी के सामने बोल सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं जैसा ग्रामेटिकल में बोला जाता है. हर चीज का ख्याल रख करके बोला जाता है, लेकिन हमें यहाँ किसी चीज का ख्याल नहीं रखना है. इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है ढीठ अंग्रेजी, थेथर अंग्रेजी, कि मन आप नहीं भी जानते हैं फिर भी अंग्रेजी आप जानते हैं. तो चलिए आज हम लोग जो है केवल क्रिया का रूप पढ़ेंगे और क्रिया का रूप से हम अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे. चलिए, then come on, let's join me and start to learn this Odysseus English, this Dheet English, that which I am going to the present the front of you, and where that you have to learn these things. Then first of all that we have to read verb forms. There are 5 verb forms, but we have to learn only 4. Only 4. How can we know and how can we sort out these problems by the support of these verb forms? But it will not be the correct. Just I am telling you. You never think that it is the correct method. But you are wishing, you are willing to speak English. That's why that I have made easier for you, by which that you can gather all the sentences, gather all the methods, and you will be capable to speak English fluently here, but non-grammatical. Just I am writing here ता हूँ, ते हैं, ती है. ता हूँ, ते हैं, ती है. In second forms, I have to write a, ya, e, e. In third forms, I have to write a, hai, या, है, ए, है, ई, है, आ, था, या, था, ए, थे, ई, थी. चुका था also. चुका था. Here is that. रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो,
अगेन रहा था, रहा था, रहे थे, रही थी। इस तरह हम लोग अगर क्रिया का 4 रूप याद रखते हैं तो हमें थेथर अंग्रेजी आ जाता है। थेथर अंग्रेजी ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आपको मन करता है कि हम बिना ग्रामेटिकल जो है अंग्रेजी बोले, किसी का सहायता हम ना लें, केवल वर्ब के रूप का अगर आप सहायता लेते हैं तो आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। तो चलिए आप यहाँ अंग्रेजी कैसे बोलना सीखते हैं, ये थेथर अंग्रेजी के माध्यम से इसको हम लोग बोलेंगे ऑडिशियस इंग्लिश। ऑडिशियस इंग्लिश, यह है आपका ढीठ अंग्रेजी, थेथर अंग्रेजी जिसको हम कहेंगे। तो चलिए हम लोग यहां पर जो है वर्ब के रूप को लिखते हैं। यहां लिखते हैं वर्ब के रूप को हम लिखना आरंभ करेंगे। आई विल स्टार्ट टू राइट द फॉर्म्स। First of all, I will write here go, second form went, and third form gone, and fourth form going. यहां मैंने वर्ब फॉर्म पहले रूप में गो लिखा है, दूसरे में वेंट लिखा है, तीसरे में गॉन लिखा है और चौथे में मैंने गोइंग लिखा है। यानी कि ताहू ते हैं तीहे का तात्पर्य है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं जाता हूं, वह जाती है, वह बात करती है, हम लोग बात करते हैं। सेकंड फॉर्म में मैंने लिखा है भूतकाल की क्रिया है ये, जहां आपका काम बीत गया, मैंने देखा, वह आया, वे लोग चले गए, मेरी माँ बुलाई। इस तरह से हम सेकंड फॉर्म में बात करते हैं। थर्ड वाले फॉर्म में हम बात करते हैं आ है मैंने देखा है, या है मतलब लिया है, ए है मैंने गए हैं, ई है मैंने वह आई है, आ था देखा था, या था लिया था, ए थे गए थे, ई थी पूछी थी, चुका था आ चुका था, जा चुका था। चौथे वाले रूप में हम लोग बात करते हैं रहा हूं, आ रहा हूं, रहे हैं, जा रहे हैं, रही है, बोल रही है, रहे हो, सुन रहे हो, पूछ रहे हो, बातें कर रहे हो। रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहे थे, जा रहे थे, बोल रही थी, पढ़ रही थी, लिख रही थी। कभी कभी हम लोग ऐसा वो बोलते हैं, sometimes we say that I don't want to know the grammatical because it is very tough, that it will create the lot of problems that before me. That's why that I am not ready to learn English. But here is the method that where you can learn your audience English and you can speak fluently before anybody, because nobody will object to the while speaking, that if you have a good command that in communications, not in grammar. These things you are going to study here, and that is the front of you, and you should know these things better. Go is jana. Go is jana. Here it is jana. Go is jana. Went is that. I will make a sentence here, it is better. मैं जाता हूं, मैं जाता हूं. Here is that I go. Here I will write मैं गया. I verb to went. I went. Here is that मैं गया हूं, मैं गया हूं. It means मैं इंग्लिश आई, एंड हियर इज गॉन, आई गॉन. एंड इफ आई हैव टू से, अगर मुझे कहना है कि मैं गया था, देन ऑल्सो आई हैव टू राइट आई गॉन. यानी कि मैं गया हूं फिर भी आई गॉन बोल दीजिए.
और मैं गया था फिर भी आई गॉन बोल दीजिए, यानी कि ये नॉन ग्रामेटिकल है, जहां आप दोनों तरह की समस्या का हल कर लेते हैं। अब आइए यहां रहा हूं मैं, कहेंगे मैं जा रहा हूं, सीधे मैं का कर दीजिए आई, यानी कि ING वाला वर्ब होता है वर्ब 4, जहां क्रिया के अंत में आप हमेशा ING का यूज करते हैं। यहां भी हम करेंगे आई गोइंग, और मैं जा रहा था फिर भी हम कहेंगे आई गोइंग, आई गोइंग। इस तरह से ये आपका थेथर अंग्रेजी बन जाता है। मैं जाता हूं आई गो, मैं गया आई वेंट, मैं गया हूं आई गॉन, और मैं गया था आई गॉन। मैं जा रहा हूं आई गोइंग, मैं जा रहा था आई गोइंग, यानी कि कहीं भी आपको कोई ग्रामेटिकल यूज नहीं करना है। बिना ग्रामर का जो है आप अंग्रेजी यहां धड़ल्ले से आप बोल सकते हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो मैं बता रहा हूं, ये घर बैठे जिनकी ज्यादा उम्र हो गई है वो कहीं न जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं, और उनको ये इच्छा है कि हम भी अंग्रेजी कुछ थोड़ा बहुत बोले, तो वैसे व्यक्ति के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं जहां आप अंग्रेजी आप भी बोलने लगेंगे। लेकिन ये मेथड बिल्कुल ग्रामेटिकल नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आप अंग्रेजी बोल लेंगे। इस कारण मैंने इसका नाम दिया है ऑडिशियस इंग्लिश थेथर अंग्रेजी, मैंने ढीठ अंग्रेजी। क्या हम नहीं भी जानते फिर भी जानते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे रूप में। अब हम बात करेंगे इट का। इट माने खाना, यानी कि वह खाता है, वह खाता है। हम बोलेंगे ही इट, वह खाया, वह खाया। ही एट, वह खाया है, वह खाया है, वह का ही, और इट का तीसरा वाला रूप हो गया ही इटेन। और यहां फिर बोलेंगे वह खाया था, तो ही इटेन, वह खा रहा है, वह खा रहा है, तो बोलेंगे ही ईटिंग, और वह खा रहा था फिर भी बोलेंगे ही ईटिंग। इस तरह से आप ये थेथर अंग्रेजी बोल लेते हैं। इसका नाम थेथर अंग्रेजी, यानी कि कोई भी उम्र के लोग घर बैठे ये सारी चीज का अध्ययन कर सकते हैं, और अंग्रेजी वो भी बोल सकते हैं जिनको बहुत दिनों से ये तीव्र लालसा थी, तीव्र इच्छा थी कि हम लोग अंग्रेजी कैसे बोलेंगे यहाँ। तो ये आपका ऑडिशियस इंग्लिश आपके सामने है, और यहां कोई ग्रामेटिकल मैंने यूज नहीं किया है। कहीं भी कोई ऐसा चीज आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि जहां मैंने उसका इस्तेमाल किया है। देखिए यहां जो वर्ब 3 में मैंने गॉन का यूज किया है, यहां आपको जो हैव हैज V3 के साथ यूज करना था, और मैं गया था आया था वाले के लिए हेड प्लस V3 का यूज करना चाहिए था। रहा हूं रहे के लिए हम लोग को MR इज प्लस V4 का यूज करना चाहिए था, और रहा था रहे थे के लिए वाज वॉर प्लस V4 का यूज करना चाहिए था। लेकिन मैंने उन सभी चीजों को एक बक्से में कैद करके रख दिया, और आपके सामने जो है ये खाली बक्सा लेकर मैं आया हूं, जिसके माध्यम से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, जहां कोई ग्रामेटिकल को कोई अड़चन ही नहीं है आपके सामने। इट मीन्स देयर इज नो एनी ऑब्स्ट्रक्शन on the way of speaking English, that by which that you can learn the English very smoothly, that without any hesitations, without any obstructions, and that is that in front of you, and you can learn that from here. That is your Odysseus English. Let's now talk about the negative and interrogative sentences, that where you have to know these negative forms, that how can you sort out this negative sentence. अब हम सोचते हैं कि नेगेटिव
नेगेटिव कैसे बनाएंगे सेंटेंस? थेथर अंग्रेजी को बोलने के लिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस का भी समाधान है। देखिए कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जब हम नेगेटिव बात करेंगे कि मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, तो केवल आपको यहाँ नॉट का प्रयोग करना है। और नॉट का प्रयोग करना बड़ा आसान होता है। जैसा कि हम लोग हमेशा 5 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, 100 का नोट और 50 के नोट का जो काम करते हैं, यानी कि नोट का नाम मुझे लेना पड़ता है और वही नोट आपको यहाँ पर यूज करना है। चाहे आप 1 रुपये के नोट की बात करें, 10 रुपये नोट की बात करें, ये नोट हर व्यक्ति को जिंदगी में याद रहता है। वो नोट कभी ना भूलते। माता पिता भाई बहन सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन नोट नहीं भूलते हैं। और यही नोट हमको यहाँ पर यूज करना है। मैं नहीं जाता हूं, मैं का अंग्रेजी आई हो गया और बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, आई नॉट गो। यहां अगर हम लोग बात करेंगे मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, आई नॉट वेंट, मैं नहीं गया। और यहां बात करेंगे कि मैं नहीं गया हूं, मैं नहीं गया हूं, तो कहेंगे आई नॉट गॉन। और मैं नहीं गया था, मैं भी आई नॉट गॉन। और यहां कहेंगे कि मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, तो यहां बोलेंगे आई नॉट गोइंग। और मैं नहीं जा रहा था, उसमें भी कहेंगे आई नॉट गोइंग। इस प्रकार आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। थोड़ा सा आपको बोलने का स्टाइल चेंज करना, यहां पर आपको थोड़ा सा फास्ट चलना है। कोई पूछता है कि आप जानते हो उसके बारे में, क्या आप जाते हैं वहां, तो नो आई नॉट गो, नो आई नॉट गो। यानी कि वो व्यक्ति जो सुनने वाला व्यक्ति होगा उसको ये लगेगा कि नहीं, लड़का जो है बहुत ज्यादा अंग्रेजी जानता है। लेकिन आप क्या जानते हैं? आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है अंग्रेजी के बारे में, लेकिन नहीं जानते हैं फिर भी जानते हैं और बोल देते हैं लोगों के सामने, आई नॉट गो, आई नॉट रीड दैट, आई नॉट स्पीक इंग्लिश, आई नॉट गो होम, आई नॉट स्पीक एनीथिंग्स, आई नॉट ईट दिस थिंग्स। ये नोट लगा करके आपने अंग्रेजी तो कह दिया, लेकिन वो ग्रामेटिकल सही नहीं है, वो गलत है। जो आप कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन ये नॉन ग्रामेटिकल आप बोलना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया कि आप ऐसे भी अंग्रेजी बोल सकते हैं कि मैं नहीं जाता हूं, आई नॉट गो, वह नहीं आता, ही नॉट कम। हम लोग नहीं बात करते हैं, वी नॉट टॉक, तुम नहीं समझते, यू डोंट अंडरस्टैंड। यानी कि पकड़ने वाला पकड़ भी नहीं पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। आपने केवल नॉट का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि नहीं का ही अंग्रेजी नॉट होता है। 5 का नोट, 10 का नोट ये बोल देना है और आपका नॉट वाला समस्या हल हो जाता है। लेकिन आप सही बोलना चाहते हैं तो इसमें जो है डोंट और डजंट का प्रयोग करना होता है। इसमें अगर सही बोलते हैं हम लोग तो इसमें डिड नॉट प्लस वर्ब वन का प्रयोग होता है। और इसमें अगर सही बोलना चाहते हैं तो हैव नॉट, हैज नॉट प्लस V3 और हैड नॉट प्लस V3 का प्रयोग होता है। और इसमें अगर नेगेटिव बोलते हैं हम लोग तो एम आर इज प्लस नॉट, वाज वोर प्लस नॉट, उसके बाद हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं। ये हो गया बिल्कुल ग्रामेटिकल मेथड, जहां आप कभी मात नहीं खाएंगे, लेकिन यहां आपके मन में इच्छा है कि हम उन सभी चीजों को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, हम उन सभी नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में उपलब्ध है। कोई सामान हम लोग खरीदते हैं तो कोई सामान जो है हमको 100 रुपये में मिलता है, वो कहता है कि इसका क्वालिटी कुछ अलग है। उससे थोड़ा सा लॉ में जाते हैं तो कभी हमको कहीं पर जो है वही 85 रुपये में मिल जाता है, 80 में मिल जाता है, लेकिन चीज वही है, नाम उसका वही है,
लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो 100 रुपये में है। और कोई सामान हमको 50 में भी मिल जाता है, वही चीज है, वही काम करता है, लेकिन वो उस वस्तु में वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी मुझे चाहिए, लेकिन सामान वही है। उसी प्रकार हमको नहीं बोलना है, मैंने नोट लगा के बोल दिया, लेकिन वह क्वालिटी हमको नहीं मिला जो क्वालिटी हमें मिलना चाहिए था। वो क्वालिटी आपको डोंट और डजंट के पास है, यानी 100 रुपये लगाएंगे तब आपको उपलब्ध होगा। तो यहां देखिए, मैंने सारा चीज को जो है नोट लगा करके सेंटेंस बना दिया। अब बात करें हम लोग इंट्रोगेटिव की। नाउ जस्ट टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव, दैट हाउ कैन वी सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम दैट फ्रॉम अ नेगेटिव दैट इज स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, एंड दैट इज द इन फ्रंट ऑफ यू, बट दिस इज ऑल्सो नॉट grammatical. That what have we to do, that sometime that whenever that we like to speak the interrogative sentence, that we have to treat someone, we have to chide someone, and we make that interrogative sentence that easily, that we have to that's a saw just I angry, just we have to show something different, and we speak that word, that sentence very easily, that in an interrogative sentence. How can we make that? How can we make it possible that without a grammatical? Here is that हम लोग बात करते हैं ना, हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, और इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या लगा करके सवाल करते हैं, क्या करते हैं, क्या लगा करके, जिसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, ये सवाल आ गया। अब हम बोलेंगे अंग्रेजी में कैसे, मेरे पास कोई ग्रामेटिकल मेथड है नहीं, तो हमें कैसे बोलेंगे इसको। तो आपको क्या करना है, आपको किसी को थोड़ा सा धमकाना है, थोड़ा धमका के उसको बोलना है। अगर आप उसको थोड़ा सा धमका के बोलते हैं ना, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। देखिए कैसे बनता है, क्या तुम जाते हो, हमको बोलने में थोड़ा सा सुधार करना होगा, इंप्रूवमेंट लाना होगा। हम बोलेंगे क्या तुम जाते हो, यू गो, यू गो। हम लोग ऐसे इजी नहीं बोलना यू गो, हम बोलेंगे यू गो, उससे हम सवाल करेंगे यू गो। ऑटोमेटिक वो लड़का कहेगा कि हाँ मैं जाता हूं। अगर नहीं बोलना रहेगा तो वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं जाता हूं, यानी कि इसका नाम थेथर अंग्रेजी है। किसी को धमका के आप बोल दिए यू गो, कहेंगे क्या तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। क्या तुम खाते हो, यू ईट। क्या तुम बात करते हो अंग्रेजी में, यू टॉक इन इंग्लिश, यू टॉक इन इंग्लिश। ये आपका जो है थेथर अंग्रेजी है, यानी कि किसी को धमका देना है, और धमकाने पर आपका वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, लेकिन आपको बोलने का स्टाइल चेंज करना होगा। यू गो यानी कि क्या तुम जाते हो जाएगा, और वो बेचारा सुनने वाला, जवाब देने वाला बोलेगा यस आई गो। और अगर उसको नहीं में जवाब देना है तो बोलेगा नो आई नॉट गो। मैंने यहां इंट्रोगेटिव नहीं बनाया, मैंने उसको धमका दिया, मैंने उसको ऐसे लैंग्वेज से उसको कहा कि उसको ऐसा एहसास हुआ, उसको ऐसा महसूस हुआ कि व्यक्ति हमसे सवाल कर रहा है। क्या तुम रात में पढ़ते हो, क्या तुम रात में पढ़ते हो। ये हिंदी में इंट्रोगेटिव तो बन गया, लेकिन अंग्रेजी में बनाना है, और हमें ग्रामेटिकल नहीं आता है। उसको हम धमका के पूछेंगे यू रीड एट नाइट, यू रीड एट नाइट। वो ऑटोमेटिक लड़का कहेगा यस आई रीड एट नाइट। अगर नहीं पढ़ता है तो बोलेगा नो आई नॉट रीड एट नाइट। देखिए आपका अंग्रेजी कितना सरल हो गया। ये थेथर अंग्रेजी आपने कैसे बोल लिया, लेकिन आपके पास वो थेथर अंग्रेजी बोलने के लिए आइडिया होना चाहिए
किसी के सामने प्रकट करने के लिए आपके पास ये चीज होना चाहिए, वर्ब का फॉर्म्स होना चाहिए और थेथर अंग्रेजी बोलने के लिए आइडिया होना चाहिए। तो आप किसी के सामने बिना ग्रामेटिकल का भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसमें एकदम जीरो ग्रामेटिकल है, जीरो, लेकिन बिना बोले कोई ग्रामेटिकल, यहां जीरो ग्रामेटिकल है, लेकिन जब आप फास्ट बोलते हैं तो बन जाते हैं हीरो। तो आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलना सीख जाते हैं कि जहां आपको जो चीज नहीं बोलना चाहिए आपने वो बोल के पार हो गया और आपने अंग्रेजी किसी के बीच में बोल दिया। अगर फास्ट आप बोल दिए तो सुनने वाला व्यक्ति भी जो है अचंभित हो जाता है कि लड़का बड़ा फास्ट अंग्रेजी बोलता है। लेकिन आपके पास जानकारी क्या थी? आपके पास किसी चीज की जानकारी नहीं थी, केवल वर्ब के रूप की जानकारी थी कि मैं कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करूंगा। बस आपके पास यही एक हथियार था। अब हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। अच्छा, यहां भी अगर हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव की, क्या तुम गया, क्या तुम गया, क्या तुम गया, यहां भी हम धमका के उसको बोल देंगे यू वेंट। बोलेंगे ओ यू टेल मी दैट यू वेंट यस्टरडे, यू टेल मी यू वेंट यस्टरडे। वो बेचारा ऐसा प्रभावित हो जाएगा आपके सेंटेंस से कि वो बोलेगा यस आई वेंट यस्टरडे। अगर वो नहीं गया तो बोलेगा नो आई नॉट वेंट यस्टरडे। आप भी अंग्रेजी बोल लिए और वो बेचारा वो भी अंग्रेजी बोल लिया, दोनों का काम हो गया, दोनों थेथर अंग्रेजी के साथ मुलाकात हो गया। अब यहां बात करेंगे मैं नहीं गया हूं, या इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्या तुम गए हो, क्या तुम गए हो। यहां भी हम वैसे धमका करके उसको कहेंगे यू गॉन। ऐसे नहीं बोलना है, यू गॉन ऐसे नहीं बोलना है, यू गॉन ऐसे नहीं बोलना है, यू गॉन ऐसे नहीं बोलना है। उसको ऐसा बोलना है, ऐसा प्रभावित करना है कि उसको लगे कि हमको जो ये सवाल पूछ रहा है। हम बोलेंगे यू गॉन, यू गॉन, यू गॉन यस्टरडे, यू गॉन टू स्कूल, यू गॉन टू कॉलेज, यू गॉन टू ट्यूशन। वो ऐसा प्रभावित हो जाएगा कि आपको जवाब दे देगा वो कि यस आई गॉन टू स्कूल, नो आई नॉट गॉन टू स्कूल। कैसे प्रभावित हुआ? आपके शब्दों से, आपके बोलने का वो तमीज जो था, आपके पास वो बोलने का शैली जो था, उस बोली से वो प्रभावित हो जाता है और आपको वो सटीक जवाब दे देता है कि ये व्यक्ति जो है हमसे सवाल कर रहा है और मुझे इसके सवाल का जवाब देना है, और वो जवाब भी दे देता है। इसका नाम है थेथर अंग्रेजी। अब हम बात करेंगे क्या तुम गया था, क्या तुम गया था। यहां भी हम वैसे बोल देंगे यू गॉन, यू गॉन टू स्कूल। क्या तुम स्कूल गया था, क्या तुम खाया था, यू ईटन, यू ईटन। उसको लगने लगेगा कि हमसे ये सवाल कर रहा है और वो कह देगा आई ईटन, मैं खाया था, आई ईटन। दोनों में ईटन लगा करके वो भी पार हो गया और सवाल करने वाला व्यक्ति भी पार हो गया। अब हम बात करते हैं रहा हूं की। कहेंगे क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो। यहां भी वैसे धमका देना है और बोलना है यू गोइंग। ऐसे नहीं बोलना है यू गोइंग, ये बड़ा सिंपल लगता है।
यू गोइंग। नहीं कोई, हर कोई पकड़ लेगा कि नहीं ये लड़का तो गलत बोल रहा है, इंट्रोगेटिव का कोई इसमें पहचान ही नहीं है, यू गोइंग बोलता है। आपको वैसा ही पूछना पड़ेगा जैसे उसको प्रभावित करे। यू गोइंग टू स्कूल, यू गोइंग टू मार्केट, यू गोइंग टू स्लीप, वो आपको जवाब दे देगा यस आई गोइंग टू स्लीप, यस आई गोइंग टू स्कूल, यस आई गोइंग टू मार्केट। इस तरह से वो आपको जवाब दे देता है। यही चीज कहेंगे क्या तुम जा रहे थे, यहां भी हम वैसे बोलेंगे यू गोइंग, वो ऑटोमेटिक बोलेगा या आई गोइंग, नो आई नॉट गोइंग। यानी कि दोनों सेंटेंस आप धड़ल्ले से और आसानी से आप बोल लेते हैं बिना ग्रामेटिकल, लेकिन ये मेथड सही नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ऐसे रास्ते से गुजरना चाहते हैं तो गुजर सकते हैं, और किसी के सामने आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी भाषा को फास्ट करना होगा। अगर भाषा आपका हो गया फास्ट तो अंग्रेजी भी करेगा लास्ट, और नहीं तो बीच में हो जाएगा ब्लास्ट। इसलिए अगर इस अंग्रेजी को लास्ट करना है तो अंग्रेजी थोड़ा सीखो फास्ट, नहीं तो बीच में हो जाएगा ब्लास्ट। तो ये तरीका आपको अपनाना है। फिर देखिए अंग्रेजी आप कैसे बिना ग्रामर के बोल लेते हैं। अब हम लोग बात करें, हम वर्ब के आइटम को चीज अब कहेंगे हम से सैड, सेइंग। अब कहेंगे कि क्या तुमने नहीं कहा, क्या तुमने नहीं कहा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि दोनों चीज आपको बोलना पड़ेगा। क्या तुमने नहीं कहा, क्या तुमने नहीं कहा, क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बन रहा है वैसा ही, लेकिन आपको अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी आपको आता नहीं है, आपको आता ही नहीं है अंग्रेजी। कोई ग्रामेटिकल आपने पढ़ा नहीं, कोई ग्रामेटिकल आपके पास नॉलेज है नहीं, तब क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आप उसको संतुष्ट करेंगे। आपको क्या उपाय करना है, आपको क्या करना है, यू लगा दीजिए, यू नॉट से। क्या तुम नहीं कहते हो, सॉरी, क्या तुम नहीं कहते हो, क्या तुम नहीं कहते हो, तो हम कहेंगे यू नॉट से। ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे यूज नहीं करना है, नहीं तो उस सेंटेंस में आपका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। There will not be any impression there on your sentence that when you just telling someone क्या तुम नहीं कहते हो, that it is in Hindi, but I think you have to speak here something different English that which is a non-grammatical, and that is in front of you, that by which you can learn the English, and that is your interrogative plus negative sentence. तुमने क्या तो कैसे बोलेंगे इसको, you not say, you not say, you not say every day, you not go to school, you not disturb me। ये क्या और नहीं दोनों प्रकार के प्रश्न आपके सामने पधारते हैं, लेकिन आपको उसका स्वागत करने के लिए ये थेथर अंग्रेजी की आवश्यकता है, और ये थेथर अंग्रेजी आपके सामने है। यू नॉट से, यू नॉट से मी फूल, क्या तुम मुझे मूर्ख नहीं कहते हो, क्या मैं अंग्रेजी में बात नहीं करता हूं, आई नॉट स्पीक इन इंग्लिश। देखिए बोलने का अंदाज कैसा है, बोलने के अंदाज पर आपका ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव चलेगा। बोलना आपको आना चाहिए,
बोलना आपको सीखना चाहिए कि हम किसी को धोखा कैसे देंगे, ठगेंगे कैसे। इस प्रकार आप ये अंग्रेजी बोल लेते हैं। यहां भी अगर आप बात करें, क्या तुमने नहीं कहा, क्या तुमने नहीं कहा, तो हम यहां क्या बात करेंगे, यू नॉट सेड, यू नॉट सेड, सेड का सेड ही मैंने रख दिया। अब यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, क्या तुमने नहीं कहा है, क्या तुमने नहीं कहा है, तो यहां भी हम कर देंगे यू नॉट सैड, यानी कि थोड़ा सा धमका देना है उसको, यू नॉट सैड, क्या तुमने नहीं कहा है। अगर कहेंगे क्या तुमने नहीं कहा था, तो यहां भी हम वही चीज को रिपीट कर देंगे, यू नॉट सेड यस्टरडे दैट बिफोर योर फादर, क्या तुमने पिता के सामने ऐसा नहीं कहा था, क्या तुम कल क्रिकेट मैच नहीं देखा था, यू नॉट वॉच्ड क्रिकेट मैच यस्टरडे। ये हमारा बोलने का अंदाज है। और ये बोलना जहां आपको आ गया, आप थेथर अंग्रेजी बोल लिए। यहां भी आप वही करेंगे, क्या तुम नहीं कह रहे हो, यू नॉट सेइंग, क्या तुम नहीं कह रहे थे, यू नॉट सेइंग। इस तरह आप इसका भी समाधान कर देते हैं। और हम बात करते हैं अब डब्ल्यूज क्वेश्चन की, तुम क्या कहते हो, ये डब्ल्यूज क्वेश्चन है, तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो, डब्ल्यूज क्वेश्चन हमारा है। तो हम क्या करेंगे, ये डब्ल्यूज क्वेश्चन जो क्या है इसको हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम वाट लगा देंगे, वाट, तुम का अंग्रेजी हम यू लगा देंगे, और कहना का अंग्रेजी से लगा देंगे, व्हाट यू से हो गया। इस प्रकार आपका डब्ल्यूज क्वेश्चन बन गया। यहां पर अगर हम बात करेंगे, क्या तुमने कहा, ये तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, तो हम करेंगे यहां भी व्हाट, तुम का यू, और सेड को वैसे रहने देंगे, व्हाट यू सेड। इस तरह आपका ये डब्ल्यूज क्वेश्चन बन गया, व्हाट यू सेड। यहां भी बात करें, क्या तुमने कहा है, क्या तुमने कहा है, यहां भी हम वही कर देंगे, तुमने क्या कहा है, सॉरी, तुमने क्या कहा है, यहां भी वही करेंगे, व्हाट यू सैड। और तुमने क्या कहा था, तो यहां भी हम बात करेंगे व्हाट यू सैड का। यहां बात करते हैं तुम क्या कह रहे हो, तो यहां हम बोलेंगे व्हाट यू सेइंग, और तुम क्या कह रहे थे, व्हाट यू सेइंग, यानी कि डब्ल्यूज क्वेश्चन आपका बन जाता है। और ये आपका थेथर अंग्रेजी आपके सामने उपस्थित होता है। केवल आपके पास जो है बोलने का शैली होना चाहिए, बोलने का आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास ये आइडिया है, आप थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, तो आप किसी को भी बोलते समय धोखा दे सकते हैं, और लोगों के सामने जो है आप उभर करके आएंगे कि नहीं, वो लड़का बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि आप फास्ट बोलते हैं। आपको ठगने का भी कला है। तो मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप अंग्रेजी जो है किस प्रकार एक थेथर जैसा सीखता है, एक थेथर जैसा काम करता है, उसके अनुसार भी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन ये विदाउट ग्रामर है, यहाँ ग्रामेटिकल का कोई भी रूल यहाँ मैंने आपको नहीं बताया है। और कभी कभी लोग इस प्रकार का चर्चा करते हैं कि बिना ग्रामर का भी अंग्रेजी बोला जाता है, और एक्चुअली जो है जो ग्रामर को फॉलो नहीं करते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। और जब हम उनके फास्ट स्पीच को देखते हैं तो हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं उससे, और हमारे घर वाले कहते हैं कि देखो वो लड़का जो है कितना फास्ट अंग्रेजी बोलता है। लेकिन अगर आपको ग्रामेटिकल का नॉलेज है तो आप भांप लेते हैं, समझ लेते हैं कि लड़का जो भी सेंटेंस बोल रहा है वो बिना ग्रामर का बोल रहा है, कहीं भी वो सही नहीं है, लेकिन वो अंग्रेजी बोल रहा है। ओके,
Thank you that very much for watching this video, and again that I will give you a lot of I think such the methods, such structures by which that you can find out that yourself that I am great.